है वो सलाइन है। अगर हम सरफेस वाटर बॉडीज को हेल्दी करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर की सैलिनिटी है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। दिस वी प्रैक्टिकली ट्राइड एंड एक्सपीरियंस इन हरियाणा। खारा पानी मीठा होगा क्योंकि बी यूजेबल वाटर वंस अगेन। जैसे हरियाणा की मैं आपको केस स्टडी बता रहा था। रोहतक में देयर इज अ डेवलपमेंट ब्लॉक कॉल्ड सापला, उसके अंदर एक विलेज था दतौर विलेज। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो विलेज में अंडरग्राउंड जो पानी था, जो बोरवेल थे, वो यूजेबल थे ही नहीं। मतलब वो जानवर भी उसको नहीं पीते थे, इतनी सैलिनिटी थी। हमने सरफेस वाटर बॉडी को ट्रीट किया फॉर 6 मंथ और 30 मीटर के रेडियस में जितने भी बोरवेल थे सबका पानी का सैलिनिटी इस लेवल तक कम हो गया कि जानवर पीने लगे within a matter of 6 months. So these are the conservation services wherein groundwater correction is under this category. Then moisture in soil and air impacting the rainfall also, because if the water bodies are healthy, you'll get a better rainfall. Flora and fauna conservation, your biodiversity conservation, carbon sequestration, and water quality availability for drinking and irrigation. जो इरिगेशन है उसकी तो वाटर क्वालिटी अगर हम कैटेगरी बी अचीव करते हैं तो इट इज गुड फॉर इरिगेशन because the complete electrolyte balance is there and the dissolved oxygen level is high, so that can be used for that is what we call as neuroimmunobooster for plants and animals. Then comes the maintenance service, which is a perennial water body, ambient temperature, electrolyte balance, native microbiota, oxygen levels. So these are the services only from keeping water bodies healthy. If beautification doesn't impact this kind of thing. So urban challenges are taken care of. Uh, Added is the carbon exchange. Rest everything has already been discussed. Coming on to the rural side of it, the impact is there in all the aspects of rural communities. Water availability, then your Goshala Prabandhan or animal husbandry, and then your agriculture and horticulture. So this is also the concept of symbiotic farming, wherein you do multiple avenues into farming and all are interdependent on each other, and you can take out profitability from each sector. Again, carbon sequestration or carbon credits is yet another aspect of wherever you have water body. So this is the case study for one of our projects wherein we have treated the industrial wastewater, converted into neuroimmunobooster for plants and animals, and used it in aquaculture, animal husbandry and farming. अब ये करीबन 32 एकड़ का एक फार्म है और रोड के अपोजिट साइड में देयर इज अ राइस मिल। तो जो राइस मिल का वेस्ट वाटर है वो इतना टॉक्सिक होता है कि इट इज नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ यूजेज इन इरिगेशन। ये आपको राइस मिल दिख रही है। राइस मिल का सारा वेस्ट वाटर वो एक तरफ की ड्रेन में डिस्चार्ज करते थे। काऊ शेड में उन्होंने एक बायोगैस प्लांट लगाया हुआ था। सो बायोगैस का जो वेस्ट है दैट इज स्लरी, उसको दूसरी तरफ की ड्रेन में वो डिस्चार्ज करते थे। सो हमने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला कि दोनों को आप एक जगह वाटर बॉडी में इकट्ठा कर दीजिए, दोनों प्रकार के वेस्ट, यानी कि स्लरी भी और राइस मिल का वेस्ट वाटर भी। हमने उसको ट्रीट किया और वो वाटर वाज ट्रांसफॉर्म्ड। वंस इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड वी आस्क्ड देम टू यूज इट। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गोभी का फार्म है। तो ये पूरा 5 एकड़ का फार्म है। पूरे फार्म के अंदर वायरस आ गया था। नाउ वायरस इन एग्रीकल्चर हैज गॉट नो सोल्यूशन। अगर आपके प्लांट में, आपकी क्रॉप में वायरस आ गया है तो आपको ट्रैक्टर ही चलवाना पड़ेगा उसके ऊपर, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। बट हियर वी यूज्ड आवर rejuvenated water into the same crop and they got the same yield from the virus infected crop also. The infection was eventually gone and they got the same amount of yield which they would have got from the chemical based farming.
So and again for using it the same water for bathing and drinking of all the cows, within about 6 to 8 months, they got rid of all their diseases into the dairy also. So that was the impact. While they were not into fisheries, but they were fishes into the pond that they had created. Almost उनका 1/3 of an acre size का उनका pond था और there were a good amount of fishes into it and they had a good bird population also coming into the water body. So एग्रीकल्चर में जो इसका इम्पैक्ट है वो सिर्फ the way you do irrigation is different from the normal drenching or flooding of irrigation. So यहाँ पे जो irrigation का process है that is what we propose is foliar spray. Sprinkling करनी है और उसका time fix है early morning at the time of sunrise. Once the water is restored as per our standard, that water can be used for sprinkling into the farms and the timing is fixed. It must be done only early morning at the time of sunrise. या जहाँ पे ड्रिप है वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन भी यूज हो सकता है. So that is how the farm goes chemical free, antibiotic free, and uh, it is resilient to disease, pest and weather conditions. So जो इनपुट कॉस्ट है वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है बिकॉज आपको फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड कुछ नहीं चाहिए और जो आपकी आउटपुट है वो फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉप साइकिल यू गेट अ बेटर आउटपुट. So that is the impact on agriculture. So these are some other projects that we have done. Ahmedabad is Gujarat, Sonipat is Haryana, Calcutta is West Bengal. अयोध्या में भी हमने किया था एक प्रोजेक्ट सिविल लाइंस में लाल दिघी तालाब. So far we have done over 40 projects spread over 300 plus acres of water bodies. And we are saving more than 100 million liters of sewage every day with our technology. Almost 3 million people have been saved from air pollution, जिसमें से 2 million तो मुरादाबाद में है, and 2 million people from water and vector-borne diseases. Over hundreds of millions of liters of groundwater is being recharged, and 100 plus native species have been conserved across the country. These are some of the awards. The most recent one is from uh, the World CSR Congress, which was given to us on 18th of February 2024, which was the most innovative technology of the year. We got the CII National Award for our project in Uttar Pradesh only in Varanasi. That was for Kabir Prakriti Study, Lehtara Lake. Then National Institute of Disaster Management gave us a certificate of appreciation, which is under Ministry of Home Affairs. Best environmental startup was last year July, where we met Renu Madam. And ESG Enabler Technology of the year 2023 was given by Ministry of New and Renewable Energy. CRDT is Center for Rural Development Technology for IIT Delhi. They are now our knowledge partner. RC Mishra is basically Civil Society Award. We are the technology partner for Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India for AMRUT 2.0. Global Top Author Award was by Smart Water Magazine, Spain. Idea was spreading was from TED, and Water Hero was the first award that we got from Jal Shakti Mantralaya in 2019. When the award was launched, we were one of the first awardees. So that's the end of the presentation. If anybody has got any questions, you can ask. You see, we have officers from various departments, including agriculture, rural development. I would request you to share your takeaways. आप लोगों को क्या चीज़ समझ में अच्छी आई और क्या सवाल हैं, and how would you like to take it forward? And, this is a unique
information which we have got. I may say so. सर इसमें बेहतर होता जी। सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें बेहतर होता कि जितने अवार्ड मिले हैं और जहाँ भी ये सफल हुआ है वहाँ का एक कोई भी व्यक्ति बंदा था साथ में बताता कि हमारे यहाँ सफल हुआ है, तब हम सब उसको हम मान सकते हैं। ऐसे आप गुणगान कर रहे हैं, इसको हम कैसे माने कि आपने ये काम किया है? इसको आप मेरे ख्याल से इग्नोर कर दीजिए। आपको अगर कोई सवाल हो या कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वो बताएं तो वो अच्छा रहेगा जी, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। और कई नई बातें यहाँ जुड़ी जो सर अभी सीडीओ साहब बता रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे तालाब हम लोगों ने ढेर सारे तालाब बनाए अमृत सरोवर के रूप में, लेकिन जो तकनीकी आप बता रहे हैं वो सारे के सारे तालाब उस तकनीकी पे फेल हो जाएंगे। तो चूंकि एपीसी सर यहाँ बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं, इसका पूरा एक प्रेजेंटेशन, एक सिस्टम जो साधना देश के रूप में आ सके, सारी चीजें उसमें समाहित की जा सके। सर के सामने कोई प्रोजेक्ट इस तरह का आप रखिए कि जो भी हमारे तालाब बने हुए हम मनरेगा के तहत हम लोग उसको फिर से ठीक कर सकें, उसमें पानी आ सके, और आपका जो जिसको मेडिसिन कह रहे हैं उस मेडिसिन का क्या है, कैसे वो अपना देश के माध्यम से सबके उपयोग के लिए आ सकता है। ये अगर एक प्रोजेक्ट आप देते हैं, आपका जितना रिसर्च ये प्रयोगशाला तक सीमित रह जाएगा, आपके प्रेजेंटेशन तक सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्ट इस रूप में बना करके सर के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ग्राम विकास में सारे निर्णय आपके सर से मान्य होते, तो अगर वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग बड़े पैमाने पे इसको ठीक कर सकेंगे, और हम लोग पर्यावरण को भी, कृषि में जो उपयोग करना जिस तरह से उसको भी हम लोग कर सकेंगे। सर ये मनरेगा में जो तालाब बनता है वाटर रिचार्जिंग के कंसेप्ट से बनता है कि पहले वाटर रिचार्जिंग हो, जबकि उसमें से ये कहा गया था कि 10 से 20% ऐसे तालाब बनेंगे परसेंट जो एक्वाकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। एक्वाकल्चर का मतलब यह कि कम से कम 6 फीट पानी उस कैप्टिविटी में हमें रखना है, और उसके लिए कैचमेंट का पानी, क्योंकि जो हमारा रेनफॉल का पानी है वो पानी हमारे तालाब में नहीं आता, वो तो बह करके इधर उधर चला जाता है, क्योंकि जो तालाब का जो एम्बैंकमेंट है वो आजकल मनरेगा में इस तरह से बन रहा है, जो उसका स्लोप होना चाहिए 145 डिग्री पर बाहर से अंदर से, उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं बनता। वो बनता जब थाली में से भी कटोरी बन जाता है। थाली पुराना जो उसका पूरा तालाब का एरिया था उसमें से भी खाली छोटा सा पोर्शन गहरा कर दिया और चारों तरफ से इंक्रोचमेंट हो गया, पानी रन ऑफ वाटर तो आ नहीं रहा उसमें कैचमेंट का, वो तो ऊपर का जो पानी सरफेस कर, उसके बाद वो सीपेज करके चला जा रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, न उसको मॉइस्चर भी जो जमीन का अंडरग्राउंड मॉइस्चर है वो भी नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया था, तालाब का मॉडल दिया था 1 हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर, सवा पौने ये 0.25 हेक्टेयर, तो 0.2 हेक्टेयर से नीचे का तालाब एक्वाकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता, और जो तालाब बनते हैं वो 0.05 हेक्टेयर के बनते हैं या 0.1 हेक्टेयर के बनते हैं मनरेगा के अंदर, तो हमारे पर्पज को सॉल्व नहीं करते हैं। तो एक महत्व यह है कि मनरेगा को अगर बनाना है और उससे कोई असेट रूरल असेट हमें डेवलप करना है तो उसमें हमको जाना पड़ेगा एक्वाकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तालाब की डिजाइनिंग के, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अदरवाइज तो मैं लेबर तो बन गया, लेबर को मिल गया, मैंडेट क्रिएट हो गया और विध्वंसही हो गया, ये सबसे बड़ी बात है, सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों सवालों के जवाब अगर दे दें सर, कौन सा राइस मिल है जिसमें सर वाटर डिस्चार्ज होता है? वो खतरनाक वाटर डिस्चार्ज हो रहा है राइस मिल में। राइस मिल में तो कोई पानी निकलता नहीं बाहर, बल्कि राइस मिल तो एक्वाकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राइस ब्रान हमारे फिश फीड के लिए इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। तो राइस बेल्ट के हैं चंदौली के रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही कि ऐसा तो नहीं कहीं बनता। और वो भी खतरनाक, शुगर मिल से ज्यादा, शुगर मिल सबसे ज्यादा डिस्चार्ज, शुगर मिल सबसे ज्यादा करना है, पॉल्यूशन सबसे अधिक बढ़ा रहे हैं। सारे पॉल्यूशन इंडस्ट्री से जुड़ा है ना, सीवेज। अवस्थी सर, मैं चाहूंगा कि मेरा प्रेजेंटेशन 2 मिनट का मैं दिखा दूं आपको भी। वाटर आपके वाटर ये जो रिस्टोरेशन से संबंधित है गाजियाबाद का, जैसा मैंने आपसे बात की, ये थैंक यू सर। ये गाजियाबाद में मसूरी झील है जो दासना जेल के बगल में है, 50 हेक्टेयर की ये झील है। ये 2020 का मान समय है। आप देखिए कि इंक्रोचमेंट इस एरिया के चारों तरफ से हो रहा है।
उस समय मैं डायरेक्टर था, मैंने इसको 10 साल के लिए लीज पर दिया। और ये यंगस्टर लड़का बीटेक किया हुआ जो बाहर विदेशी नौकरी छोड़ करके यहाँ आया और उसने फिर को अडॉप्ट किया, उसको दिया गया। और आज इसकी पोजीशन इस तरीके से है। ये आज जो 2024 में इसकी पोजीशन ये है कि उसने एक आइलैंड बनाया है। और अब नेक्स्ट दिखाई जरा सा प्लीज, ये है उसका सैटेलाइट इमेज है 2019 का। देखिए कि एल्गल ब्लूम से भरा हुआ था एरिया, पूरा का पूरा एल्गल ब्लूम से भरा हुआ था। और ये सैटेलाइट इमेज नीचे वाली है, देखिए क्या पोजीशन है। और उसी वाटर बॉडी का ये देखिए 2020 में जब हमने इसको एक्शन पर किया तो सैटेलाइट इमेज ऊपर ये है और नीचे देखिए दोनों इमेज, देखिए कि वो आपकी एलओसी इमेज है और ये सैटेलाइट इमेज है। और 2024 में आज की पोजीशन ये है, बीच में आपको एक आइलैंड बना हुआ है 1 एकड़ का, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और ये इसकी सैटेलाइट इमेज है। और ये वो है आज की करंट इमेज। ये अब इसी तरीके का मॉडल हम बघेलताल नाम का एक जिला है बहराइच जिले में, बहराइच में बयाकपुर तहसील है, जहां हम 439 हेक्टेयर की झील को यूपी एग्री जो यूपी डास के अंतर्गत चलेगा, उसमें हम उसको रिनोवेट करेंगे और एक्वा पार्क बनाएंगे। मुझे वीडियो दिखा दो जरा, जो अभी तो खाली है पूरे। ये है वो। अब आप देखिए कि आज की पोजीशन क्या है। ये 50 एकड़ में हमने एनसीआर में जहां पानी का वाटर टेबल कितना डाउन है वो पोजीशन, और आज की ये देखिए मैंने क्या बनवाया। कहाँ का चाहिए? ये नर्सरी बनाई है, यहाँ पर सीड के बच्चे बड़े होंगे। और बता दूं कि 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को बेस्ट इंग्लैंड स्टेट अवार्ड मिला है भारत सरकार की तरफ से। ये है आपका वो, ये एनसीआर का है लेक। और इसी तरीके का अब ये 2024 का है। और ये हमने मैंने इसको किया था, ग्रूम किया था सर के, और उसको बेस्ट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल का अवार्ड मिला है नेशनल यूरोप ये एनएफडी मिली नेशनल किसी डेवलपमेंट बोर्ड से। इस तरह का मैं भी चाहूंगा सर आपके साथ जुड़ करके कि ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें। ये आप ऑफलाइन कांटेक्ट कर लीजिए। जी। आप और कोई सवाल अगर हो तो हाँ जी। आप यहीं पे रहते हैं? कब चाहिए हमको? पानी ला रहे थे जब मतलब पानी लगाया मैनुअली बाहर निकाला। ये भी फिश इट आउट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है सर, वो भी अनस्किल्ड मैन पावर। दैट इज गुड। नहीं और इसका इकोनॉमिक्स में बता देता हूँ सर, एक्वाकल्चर से जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 2020 से अपना रिनोवेशन काम किया, 21 से हम लोगों ने उस समय सुरेंद्र सिंह सर थे कमिश्नर मेरठ डिवीजन। 3 जुलाई 2020 को हमने सीट स्टार्ट किया और 2023-24 में 165 टन भारतीय मेजर कार्प, रोहू, कतला और मैंग मछली गाजीपुर मंडी को सप्लाई की गई। गेट प्राइस 140 रुपए के हिसाब से। और 16 टन पंगेसियस, 10 केज कल्चर भी उसमें लगाए हैं, 10 केजेस पे लगाए हैं। और 2.25 लाख उसने भारतीय मेजर कार्प मछलियों के सीड स्टॉक किए और 15 से 18 हजार जो है पंगेसियस सीड स्टॉक किए। और इस तरीके से वो कर रहा है, उसको 500 टन तक 2 साल में पहुंचाना है, जो आज 500 टन तक वो मछली उत्पादन करेगा। और साथ ही साथ कुमार विश्वास जी को भी मछली का हम लोगों ने काम करा दिया। कुमार विश्वास जी ने भी बगल में अपने तालाब में मछली पकड़ना शुरू करा दिया।
लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ और मधुकर जी का खास तौर पर जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज हम लोगों को दी। और अगर आपके कोई भी सवाल और आगे हों तो आपके पास LMA का भी नंबर होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मधुकर जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी सुझाव आगे प्रोजेक्ट्स के लिए हों तो आप जरूर शेयर करें। मधुकर जी हमारे एक FPO का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं, कुछ सेशंस ले रहे हैं। डास के सहयोग से एक लंबी श्रृंखला FPOs के लिए वेबिनार द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाने इसी अगले महीने से। और उसमें डिफरेंट कमिश्नरीज जितने FPOs हैं उनको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मधुकर जी का धन्यवाद करता हूँ। जी वो एक्चुअली स्लाइड में भी था, आप लिख लीजिए 9650